friends, welcome to my channel, and I hope you are doing well in the exams. And this particular video is on research methodology and statistical analysis. I'm going to give you the last minute revision work or suggestions, whatever you say. And before this, I have shared you that this MCO 03 in two parts recently, 15 days back. So you should watch that. You have some detailed explanation in that, and also I have some previous videos of MCO 03 of the previous exams. So those videos are also going to be very helpful to for this December exams. So friends, we will start this, but before that, I will request you that those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe. It's an educational channel. The more subscription will give me more confidence, and I would be able to prepare some more useful videos for you. So friends, let's start the video, and let's straight away get to unit 1. These are all the contents. About this MCO 03, little bit tactical chapter. काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर. बेसिकली रिसर्च बेस्ड है, एंड न्यूमेरिकल्स इसमें वन और मैक्सिमम टू, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड जैसा कि जून के एग्जाम्स में थे, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे. थोड़े से मतलब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था इन जून एग्जामिनेशन. सो लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज वेल फॉर दिस डिसम्बर एग्जाम्स, एंड IGNOU doesn't make any experiments. So now, as far as your preparation is concerned, so let me tell you that this video is going to help you in that. No problem with that. So firstly, you should understand what is this business research. As we know, it is a systematic study of a problem and finding its solution. So that is business research, and why this business research is being conducted by the firms. Basically, there are different types of researches that we do, because companies generally look for some good production techniques where they can produce goods more profitably. New marketing methods, and to find the new ways of raising finance and using them effectively to get good returns. Then to improve the skills of the employees, and for purchase departments also, how can we purchase the raw materials, and for trading firms, they can also purchase goods, what are the new ways, techniques, or finding the different types of suppliers from where we can make effective purchase. So these are all the significance of business research for which a firm generally do research. नाउ देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है. एंड बेसिकली आपके सिलेबस में ये 6 टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स आर गिवन. ये एक्चुअली सबसे कॉमन मेथड्स हैं, जैसे कि सर्वे मेथड. यहाँ पे सर्वे करके कंपनी फाइंड आउट करती है, रिसर्च करती है. ऑब्जर्वेशन मेथड जनरली लिमिटेड होता है थोड़ा, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करके एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. एंड द रिसर्चर शुड बी ए वेरी प्रोफेशनल एंड ट्रेन्ड पर्सन. एंड एक और मेथड है, दैट इज़ केस मेथड, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड. ये सभी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस should be done by you for the December exams. The next topic is what are the different types of problems faced by the researcher while doing the business research. ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है. एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, के ये वीडियो के एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच वी विल ट्राई टू सॉल्व. So kindly watch the video till the end. Okay friends, the next topic is what are the different conditions or essentials, or what are the different types of characteristics of a good research. So you can mention all these points in a good research work. Like it should be very objective, it should be systematic, then it should have a proper research design. ये सारे points को explain करने हैं आपको. And sufficient data should be collected for the research. The research must be logical, it should not be a void, and it should be very dynamic, flexible, and it should be easy to understand.
and it should be cost effective. It should not be very expensive, and the research must be completed within the time frame, within that time limit. Okay. From unit 2, you should revise what is this hypothesis and what are the different criteria or conditions for a workable hypothesis, and how we use or how we apply a hypothesis in solving the different problems of a business organization. So this is also a very common question. Then you should revise this what is this research design, a very important aspect of business research, and a good research design is very important to conduct a good research. And basically you should focus on this, what are the different components of a research design, like what are the different elements. So in that, the problem should be well defined. The research should have a proper objective, a definite objective. It should be well planned, and we should make or form a hypothesis before doing a research. The different sources of data should be identified properly, and from that we should collect all the information. Then comes the method of selection, I mean collection of data. Then we should analyze the data properly, and then we will present all the results and findings to the management. And the researcher should ensure that it should be completed within the time frame and it should be inexpensive. So these are all the different components a researcher should take into account. You should also revise this for distinction, pilot testing and pre-testing. Okay. The next one is unit 3. Here you should revise this difference between primary data and secondary data. I have explained this topic many times in my previous videos also. So let's move on to the next topic, the different methods of collecting primary data and the different methods of collecting secondary data. Both the questions are very important. And about this primary data, like all these methods are used, like observation, then interview method, then reporters and correspondents, through which we can collect data for the first time. We can use a questionnaire to collect primary data, and we can also collect it from schedule. And about secondary sources, like if you have forgotten the meaning of this, like let me tell you that these are all secondary data, I mean second hand data, which are already collected by some researcher, and we are using the data for conducting our research. So these are basically collected from published sources, from magazines, newspapers, from internet, and unpublished sources are there which can be collected through universities and colleges, and through some electronic sources. Like there are some precautions to be used while using the secondary data, that it should be suitable, it should be reliable enough, and it should be adequate. That means sufficient data should be collected to do the research. Then we have this question, the different advantages and disadvantages of secondary data. So this question is also you should revise for the exams. Let's move on to unit 4. Unit 4 is on sampling, and here like the different advantages and disadvantages of sampling. So do revise this question. Then what are the different essentials of a good sample? So when we collect samples, so what are the different characteristics or what are the different components that we should take into account before collecting the samples? Now we can collect all these samples through basically two methods, that is random sampling method and non-random sampling methods. You can get a difference between these two terms, random and non-random, as you can see on the screen. So always try to write the differences in tabular form, so that it's easy to memorize the topics and expand the topics in the tabular form. And you can skip that random sampling. You should more focus on non-random sampling methods, like these three. You can get short notes on this also. And non-random sampling methods include convenience sampling, judgment sampling, and quota sampling. Now, any one of them can be given in the short notes. Okay, let's move on to the next topic, sampling errors. And here you should revise the different types of sampling errors, like these two, sampling errors and non-sampling errors.
And again, non-sampling errors are divided into two classes: respondent errors and administrative errors. So these questions need to be properly prepared. Okay, unit 5 is on measurement and scaling techniques. You will get one question from this particular unit, and you should revise this question, like different levels of measurement scale. Very common question, many times it comes in the exams, and all these four types of scales that is there in your syllabus: nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. So very important question. Do prepare this well. Then some scaling techniques, how like measurement techniques that a researcher use to analyze the data. And again, these scaling techniques are divided into two types: comparative and non-comparative. Now again, in comparative, four types of methods are there, like paired comparison, rank order scale. In rank order you can get a short note also, then constant sum scale and q sort scale. So all these points need to be expanded. And in non-comparative scaling techniques, basically two techniques are there: continuous and itemized. And again, itemized को हम लोग तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं: लाइकर्ट स्केल, देन सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल एंड स्टैपल स्केल. नाउ इसके अंदर लाइकर्ट स्केल पे कभी कभी आपको शॉर्ट नोट मिलता है लिखने के लिए, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है. यूनिट 6 में प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है, एंड यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है: स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. ये चार स्टेप जनरली हम लोग फॉलो करते हैं जब कोई डेटा को प्रोसेसिंग में डालते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले तो डेटा को एडिट करेंगे, उसके बाद में उसको कोड में चेंज करेंगे, देन वी विल क्लासीफाई द डेटा, दैट मीन्स ग्रुपिंग द डेटा, और उसके बाद में उसको टेबुलेशन ऑफ डेटा, दैट मीन्स वी विल प्रेजेंट द डेटा इन ए गुड वे, इन ए प्रॉपर वे, सिस्टमेटिक वे. One more question that you should revise: the different types of classification. Basically चार टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एंड इसके अंदर जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड. एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पे एक शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको. देन दिस डिफरेंस: qualitative classification and quantitative classification. Do revise this for the distinction. यूनिट 7 की बात करते हैं. यहाँ पे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर टॉपिक है, एंड यहाँ पे ये कॉमन क्वेश्चन है: व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो ये लाइक दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं. एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स दैट वी यूज टू प्रेजेंट डेटा. तो ये चार टाइप के डायग्राम्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली इन स्टैटिस्टिक्स, लाइक बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम्स. तो ये सारी चीज़ों को विथ along with डायग्राम अगर क्वेश्चन आता है तो डू ड्रॉ द डायग्राम्स प्रॉपरली, दैट विल गेट यू मोर मार्क्स. And this is again a very common question: सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम. तो इसके ऊपर भी बहुत बार आपको डिफरेंसेस एग्जाम्स में मिलते हैं. एंड यूनिट 8 के तरफ चलते हैं. यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो डेरिवेटिव्स को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ ये क्वेश्चन यहाँ से एक मस्ट क्वेश्चन होता है, आइदर शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल सकता है. एज वी नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी है: मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और इन सब की प्रॉपर्टीज़, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जाम्स. ओके, यूनिट 9 में देखते हैं. मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस पे है. अगेन ये MCO 3 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक है. एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं. तो ये चार टाइप के वेरिएशन होते हैं जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स. जैसे कि रेंज, व्हाट इज़ रेंज, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स. दैन क्वार्टाइल डेविएशन, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकता है. कभी कभी कोई भी एक पॉइंट को आपको शॉर्ट नोट में भी डाल सकते हैं. ओके, एक और डिस्टिंक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में मिलता है.
शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे। नाउ ये भी काफ़ी स्क्यूनेस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन MCO 03। कोई भी रिसर्च के लिए स्क्यूनेस यूज़ करते ही करते हैं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेसिकली ये +1 -1 के बीच में होता है। एंड ये सारे पॉइंट्स कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किए हैं इसके बारे में। एक और डिफरेंस है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस और बॉलीज स्क्यूनेस, तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं फॉर द डिफरेंसेस। ओके, यूनिट 10 में चलते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन। अगेन ये भी यहाँ से भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन आते हैं। एंड आप रिवाइज कर सकते हैं लाइक कोरिलेशन का मीनिंग, व्हाट इज कोरिलेशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड रिप्रेजेंट देम इन द स्केटर डायग्राम। तो जैसे ये 3 टाइप के यहाँ पे कोरिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन, और इनके ये डायग्राम्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन होता है एग्जाम्स के लिए। एंड कुछ यूजेस, इसका एप्लीकेशन, वेयर लाइक हाउ फर्म्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस कोरिलेशन, लाइक दैट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है और इवन इन द 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसके अंदर इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इसके एजम्पशंस अलॉन्ग विथ द मैथमेटिकल फार्मूला, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है जो हम लोग वीडियो के एंड में वर्कआउट करेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव रिग्रेशन, कोरिलेशन के बाद में रिग्रेशन, दोनों ही मतलब काफ़ी एक साथ में चलते हैं, ये लोग रिलेटेड हैं। एंड रिग्रेशन होता है जहाँ पे कोई भी 2 वेरिएबल की नेचर बताती है, रिलेशनशिप का नेचर। एंड इसके जो मेन एप्लीकेशंस हैं इन बिजनेस, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, ये फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, CAPM में हेल्प कर सकता है। देन मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसकी स्ट्रेंथ, आई मीन योर कंपनी स्ट्रेंथ, और ये भी बता सकता है कि जो सोर्सेस हैं, आई मीन जो डेटा के सोर्सेस हैं, हाउ रिलायबल दे आर। ओके, तो आगे चलते हैं यूनिट 11 में। यूनिट 11 में है टाइम सीरीज एनालिसिस। अगेन ये भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है एंड यहाँ पे आपको याद रखना है द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड हाउ यू विल डिकम्पोज द टाइम सीरीज। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं। यूनिट 12 में चलते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अंदर एक और टॉपिक है इश्यूज, आई मीन प्रॉब्लम्स व्हेन वी कंडक्ट इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। ये 3 मेथड हैं जो विद द हेल्प ऑफ दिस वी प्रिपेयर इंडेक्स नंबर्स लाइक लैसपेरिस मेथड, देन वी हैव पैशेस मेथड एंड फिशेस इंडेक्स। तो ये तीनों मेथड पे हम लोग न्यूमेरिकल वर्कआउट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। देन वी लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 13। यूनिट 13 है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स। एज वी नो कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों रिलेटेड हैं एंड दोनों, जैसे स्टैटिस्टिक्स एवरेज पे होता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑन टेंटेटिव एजम्पशन। एंड यूनिट 13 से आप कर सकते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड व्हाई प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, और व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स of probability in decision making or in business firm. And again like this the different theories or approaches to probability, जैसे कि ये 3 अप्रोच हैं, क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। इन तीनों को एक्सपैंड करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर द दिसंबर एग्जाम्स। एक आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है बायस थ्योरम पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है बायस थ्योरम, तो ये भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिट। यूनिट 14 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। यू शुड नो अबाउट कि व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मेन एप्लीकेशंस इन द बिजनेस फर्म। सेम यूनिट से यू शुड रिवाइज दिस रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट मिल सकते हैं, important one। एंड ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कुछ एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये 3
इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, जैसे सिनेरियो एनालिसिस में हेल्प करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकता है, या फिर रिस्क इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे पॉइंट्स को एक्सपैंड करना है। इसके कई सारे फिगर्स भी हैं, डायग्राम्स हैं, तो दैट ऑल्सो यू शुड प्रैक्टिस। देन वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एंड यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आपको कोई भी तरीके से आपको याद रखना है कि इसके मेन इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के एक बिजनेस फर्म के लिए, लाइक हाउ इट यूजेस इन सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम्स। सो ये चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसी के ऊपर एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड यूनिट 15 की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस 1। एंड यहाँ पे आपको करना है व्हाट इज एस्टिमेशन एंड लाइक द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, लाइक जैसे पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं। एंड एक और यहाँ पे डिफरेंसेस भी है इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन हो गया, इंटरवल हो गया, एंड दिस वन द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द दिसंबर एग्जाम्स। इसके बाद में एक और है, ये भी आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, लाइक अ शॉर्ट नोट ऑन नल हाइपोथेसिस। दिस टॉपिक इज ऑल्सो you should revise for this exam. Then the different types of errors, like type 1 error, type 2 errors. Sometimes you get a difference on this. And one more for short note, that is level of significance. Again ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है। And what is its significance of formulating hypothesis? Why hypothesis is important for a business organization? So there are a lot of points, 9 points हैं जिनको आप expand कर सकते हैं in this answer. And what are the requisites or characteristics of a good hypothesis? So this question is also important one. Unit 16 की बात करते हैं, again hypothesis part 2। यहाँ पे आप कर सकते हैं students T distribution। Now कुछ एक ईयर से जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम बच्चों को पूछा गया है अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो इस यूनिट से आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। यूनिट 17 में है काई स्क्वायर टेस्ट। अगेन मैं तो यही बोलूँगा कि MCQ 3 का जो पेपर है उसके अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन होता है काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर। इसका इम्पॉर्टेंट मतलब मेन जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड ये डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम्स। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये 4 कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे ये रैंडम सैम्पल, देन लार्ज सैम्पल साइज, एडिक्वेट सेल साइज एंड इंडिपेंडेंस। तो ये कंडीशंस को आप एक्सपैंड कर सकते हैं इन दिस आंसर। देन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द MCQ 03 एग्जाम्स। थोड़ा सा टैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये काई स्क्वायर टेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि एकदम ही समझ भी नहीं आए, दैट्स नॉट ट्रू। एंड वाई दिस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करें बिल्कुल। एंड देन लिमिटेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। सो दिस क्वेश्चंस नीड टू बी प्रिपेयर्ड। यूनिट 18 की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के ऊपर है। एंड यहाँ पे यू कैन गेट दिस क्वेश्चन, जनरलाइजेशन पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे 2 मेथड है, लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि लॉजिकल मेथड को और अगेन वी कैन डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो ये मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं इन सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। डू वॉच दोज वीडियोस बिकॉज ये लास्ट मिनट सजेशन है, एक क्विक रिवीजन है। ये सारे पॉइंट्स मिलने के बाद में जस्ट यू नीड टू जस्ट एक्सपैंड द पॉइंट्स, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वीडियो। देन वी हैव यूनिट 19 रिपोर्ट राइटिंग पे है, एंड यू शुड नो कि व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग दैट आर यूज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये ओरल और वर्बल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, देन वी हैव रिसर्च रिपोर्ट एंड मोनोग्राम। इनके ऊपर कभी कभी जैसे मोनोग्राम पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकते हैं।
एंड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। ओके, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे जैसे कि ये स्क्यूनेस पे है, हाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। आपको यहाँ पे जैसे कि ये क्लास दी हुई है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एंड स्क्यूनेस के लिए यू कैन यूज दिस कार्ल पियर्सन फार्मूला फॉर स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मीन, मीडियन, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया है, अगेन ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इट्स नॉट कि भाई एकदम एक बार आपने देख लिया और कर लिया, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, मोड का फॉर्मूला है, एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो ये फार्मूलाज आपको यूज़ करके स्क्यूनेस फाइंड आउट करनी है। अगेन एक और मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए, एंड ये मैंने किया है बाउलिस फार्मूला से। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली अगर दे देगा कि भाई बाउलिस फार्मूला यूज़ करो, तो वहाँ पे आप यू कांट यूज़ कार्ल पियर्सन। तो यहाँ पे बाउलिस फार्मूला को आपको याद रखना है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन होल डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब अगेन लाइक ये Q1, Q3 और मीडियन ये आपको सारे निकालने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। दिस फॉर द Q1 दिस इज़ द फॉर्मूला, एंड अगेन फॉर मीडियन ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। Q3 निकालनी पड़ेगी आपको फॉर दिस Q3 के लिए। अगेन हालांकि फार्मूला में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वंस यू ट्राई टू फाइंड मीडियन फाइंड आउट करने के बाद में वी कैन इजीली फाइंड आउट Q1 एंड Q3, and then we can put that into the formula of Pauli to find the skewness. एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगेन कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। एंड इसकी आपको ध्यान में रखनी है फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला फॉर दिस इज दिस वन, ये फॉर्मूला है यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सिग्मा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। नाउ ये सिग्मा एक्स इंटू वाई, ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लाइक एज आई हैव डन हियर, क्योंकि यहाँ पे आपको मीन भी निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट एक्स, एंड अगेन टू फाइंड आउट वाई का मीन निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट वाई, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको पहले मीन दोनों के फाइंड आउट करके देन अगेन वी कैन मेक अ स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, और उसके बाद में उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एग्जाम्स में, जो इग्नू के जो बुक्स में ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, तो ये भी आप वहाँ से भी वर्कआउट कर सकते हैं फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ अगेन लाइक ये मैं आपको बता रहा था इंडेक्स नंबर पे कि ये लैस्पेरिस, पैसिस और फीसर मेथड से हाउ वी फाइंड इंडेक्स, आई मीन प्राइस इंडेक्स, इंडिसेस। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, एंड यहाँ पे बेस ईयर एंड करंट ईयर इस तरीके के दो आपको वैल्यूज़ दे सकते हैं, प्राइस क्वांटिटी, एंड दीज आर द आइटम्स ऑफ कमोडिटीज़, एंड आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे इंडेक्स। तो यहाँ पे इसके लिए अगेन आपको फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, लैस्पेरी का, पैसिस का और फिशर का, ये तीनों के फॉर्मूला। हालांकि लैस्पेरे और पैसिस ये दोनों के फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो आपको फिशर का मिल जाएगा, बिकॉज फिशर्स फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैस्पेरी एंड पैसिस फॉर्मूला। तो ईजी है, हालांकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। वंस यू कैन सॉल्व वन एग्जाम्पल यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके, एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी पे है ये क्वेश्चन, एंड यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है कि देर आर 2 बैग्स, जहाँ पे फर्स्ट बैग में 7 रेड बॉल्स हैं, एंड सेकंड बैग में 2 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं, एंड अगेन द सेकंड बैग हैज़ 5 रेड एंड 9 ब्लू बॉल्स। नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल। तो अगेन इसके लिए आपको यहाँ पे बाइस थ्योरम के फार्मूलाज हैं कुछ जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ द पर्टिकुलर फार्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज़। ये थोड़ा सा टैक्टिकल है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग,
then probability of red ball from the second bag, and then put that into the formula. तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं. देन मूव ऑन टू एग्जाम्पल 6. नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये बेसिकली हाइपोथेसिस से है, जहाँ पे आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन को बेस करके ये क्वेश्चंस हैं. ये भी काफ़ी एग्जाम्स में ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसको भी आपको रिवाइज करें. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन योर इग्नो बुक. सो प्रैक्टिस दिस. लाइक एग्जाम्पल 6 and 7, तो ये दोनों ही मतलब सेम चैप्टर के हैं. एंड एग्जाम्पल 8 इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्रोबेबिलिटी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं जो यू आर लाइकली टू गेट इन द एग्जाम्स. सो डू प्रैक्टिस दिस फॉर द एग्जाम्स and make sure that you solve all these numericals because they are very mark fetching. So I hope this video is useful to you, and if you find it useful, kindly give a like and also share it to your friends. Thank you very much for watching this video, and a very best of luck for the exams.